My dear students, welcome to Mathological. So let us start fifth session on mixed practice for NMAT and SNAP examination. So if you have not joined the Telegram channel, you can join the Telegram channel Mathological, and you can also connect with me on Telegram at ADITYAKT. Okay, start karte hain. So the first question. The cost of running a movie theater is rupees 10,000 per day plus additional rupees 5,000 per show. The theater has 200 seats. A new movie released on Friday. There were 3 shows with the ticket price was rupees 250 each for the first 2 shows and rupees 200 for the late night show. For all shows together, total occupancy was 80%. So what was the maximum amount of profit possible? Cost of running a movie theater is rupees 10,000. तो rupees 10,000 तो fixed cost है per day, ये तो लगना ही लगना है, प्लस एडिशनल रुपीज 5,000 पर शो. ठीक है, 10,000 पर डे प्लस एडिशनल 5,000 पर शो. 200 सीट्स है. अ न्यू मूवी रिलीज ऑन द फ्राइडे. देयर वर 3 शोज इन टोटल. सो कॉस्ट क्या हो जाएगा हमारा? टोटल कॉस्ट विल बी 10,000 रुपीज फॉर द डे प्लस 3 शोज 5,000 पर शो. तो 5,000 इंटू 3 15,000. So total cost will be 25,000. Total occupancy is given as 80%. Number of seats in the theater are 200. Total shows हुए हैं 3 shows. तो कितनी seats maximum book हो सकती थी? 200 into 3. 3 is number of shows. 600 seats in total. And occupancy was 80%. यानी कि 80% seats were occupied out of the total seats. तो 600 में से कितना occupied रही? 600 का 80%. So 80% is 4 by 5, which is 480 seats in total were occupied. Isn't it so? Clear? 480 seats in total were occupied across the 3 shows in total. तीनों shows का total मिला के 480 seats were occupied. And question is asking what could be maximum amount of profit possible. तो 2 shows हमारे थे. For the first 2 shows, amount was rupees 250 per ticket, and for the last show, late night show, the amount was lesser, rupees 200. तो अगर हमें profit को maximize करना है, तो more number of seats must have been booked in the first 2 shows जहां पे की ticket price was higher. So to maximize profit, cost तो fixed है. ठीक है, तो revenue must be maximum. Revenue should be maximum. और revenue कब maximum होगा? When most number of seats were occupied for the 250 rupees per ticket show. और ऐसे 2 shows है हमारे पास. तो out of 480 seats, we'll assume that 400 seats, all the 400 seats were full for first 2 shows. For first two shows, and only 80 seats were occupied in the last show. तभी revenue maximum बनेगा. और कितना revenue हो जाएगा in that case? तो revenue will be equal to 400 into 250. That is 4 into 25, 100,000, and plus 80 into 200. So that is 16,000. Total revenue हो जाएगा 116,000. So revenue is 116,000, cost is 25,000, profit will be equal to 116,000 minus 25,000. So that will be 91,000. Option D will be the answer. Just in case हमें मिनिमम टोटल रेवेन्यू चाहिए होता तो क्या करते? इन दैट केस हम लास्ट शो की सारी सीट्स को पहले फिल करते, 200 सीट्स को फिल कर देते और बची हुई 280 सीट्स को कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते, क्योंकि बाकी शोज में तो कोई दिक्कत नहीं है. 250 रुपीज सेम प्राइस है, तो 280 सीट्स को कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते. एक शो में 100 लेते, एक में 180 लेते, एक में 200, एक में 80 लेते, कैसे भी चाहते वैसे डिस्ट्रीब्यूट करते और हमारा वहां पे मिनिमम रेवेन्यू आ जाता. ओके, क्लियर है? ठीक है. सो दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट वन. The price of petrol shot up by 5%. Before the hike, the price was rupees 82 per liters. A man travels 3045 kilometers every month and his car gives a mileage of 15 km per liter. So what is the increase in the monthly travel expenditure to the nearest rupee? यानी approximate answer आएगा, exact नहीं आएगा, of the man due to petrol price hike. तो price में hike हुआ है 5% का, and 5% is 1/20. सो इफ प्राइस इनिशियली वॉज 20 रुपीज, तो अब कितना हो जाएगा? 1 से इंक्रीज कर जाएगा, बट एक्चुअल प्राइस इनिशियली वॉज रुपीज 82.
ठीक है, सो हाइक क्या होगा, 1/20 ऑफ 82 रुपीज होगा, दैट विल बी द हाइक. मैन ट्रेवल्स 3045 किलोमीटर एवरी मंथ एंड हिज कार गिव्स अ माइलेज ऑफ 15 किलोमीटर पर लीटर. तो फ्रॉम दिस टू इंफॉर्मेशन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड माइलेज ऑफ द कार, यहां से वी कैन फाइंड आउट कि हाउ मच पेट्रोल ही कैन कंज्यूम इन टोटल, एंड दैट विल डिसाइड कि हाउ मच इंक्रीज इन द मंथली ट्रैवल एक्सपेंडिचर विल बी देयर. ओके, क्या ये क्लियर है? तो पेट्रोल कंजम्पशन मिल जाएगा हमको. पेट्रोल कंजम्पशन विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 3045 किलोमीटर डिवाइडेड बाय माइलेज विच इज 15 किलोमीटर पर लीटर. दिस विल बी पेट्रोल कंजम्पशन. सो कितना आएगा, 203 लीटर्स. और पर लीटर इंक्रीज कितना है, 1/20 ऑफ द इनिशियल प्राइस. So total increase in monthly expenditure, this will be equal to 203 liters in total. और 1 लीटर में कितना डिफरेंस आया, 82/20 का. 203 इंटू 4 and 1/10 या 4.1. 203 इंटू 4 इज 812 प्लस 20.3, तो 832.30 रुपीज. दिस विल बी द आंसर. ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा. Okay. Question number 3. Next question. In a class election, 45 students each cast one vote for one of the 5 candidates for student council. Total 45 students voted. Charu received the third highest number of votes and Meena received least votes in the election. If no 2 candidates received the same number of votes and each candidate received at least 1 vote, then what could be the maximum difference of votes between Charu and Meena? चारू को मिले हैं थर्ड हाईएस्ट वोट्स एंड मीना हैज रिसीव्ड लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स. और कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं विच हैज रिसीव्ड 0 वोट्स, एटलीस्ट 1 वोट तो सबको मिला है. एंड नो 2 कैंडिडेट्स हैव रिसीव्ड द सेम नंबर ऑफ वोट्स. टोटल वोट्स हैं 45. ओके, सो लेट अस से कि कैंडिडेट्स हमारे ए, बी एंड सी से चारू, देन एम तो लास्ट आया, मीना तो लास्ट आई है, तो एक्स मान लेते हैं बीच में एक. 1 कैंडिडेट इज एक्स और लास्ट में है मीना. Okay, and we have to maximize the difference between votes of Charu and Meena. Charu has come third largest votes, third highest votes, and Meena को मिले हैं least votes. So if you have to maximize the difference between these two, तो क्या कर सकते हैं? For that, Charu के votes should be as high as possible, and votes received by Meena should be as low as possible. This value should be maximum and this should be minimum. ठीक है, मिनिमम पॉसिबल. वैसे तो मिनिमम है ही है, बट मिनिमम पॉसिबल. ओके, सो मिनिमम कितना मिल सकता है? 0 वोट तो होगा नहीं, एटलीस्ट 1 वोट सबको मिलेगा. सो मीना को 1 वोट दे देते हैं, 1 वोट टू मीना. ओके, अब अगर चारू के वोट्स हमें मैक्सिमाइज करने हैं, क्योंकि चारू थर्ड आई है, तो ए और बी के वोट्स भी तो मैक्सिमाइज होंगे, उनके वोट्स भी तो बढ़ेंगे. यानी कि अल्टीमेटली वी ऑल्सो हैव टू मिनिमाइज वोट्स रिसीव्ड बाई एक्स. फोर्थ वाले को भी कम से कम वोट मिले हो, तभी तो हमारा डिफरेंस बढ़ेगा. तो फोर्थ वाले को मिनिमम वोट कितने मिल सकते हैं? सेम तो मिल नहीं सकते. सो मान लेते हैं इसको 2 वोट्स मिले हैं. मिनिमम वैल्यू आ गया 2 फॉर एक्स, 1 फॉर मीना, यानी कि 3 वोट्स हैव ऑलरेडी बीन एग्जॉस्टेड. टोटल 45 थे, 45 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, रिमेनिंग वोट्स आर 42. नाउ दीज 42 वोट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए, बी एंड सी. और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करने हैं? सो दैट चारू के वोट्स मैक्सिमाइज हो जाए, ओके. तो यानी कि डिफरेंस हमें वोट्स का 1-1 ही रखना पड़ेगा, तभी चारू के वोट्स मैक्सिमाइज होंगे. ओके, सबको इक्वल नहीं दे सकते बिकॉज चारू के थर्ड हाईएस्ट है. अब 42 का एवरेज आएगा 14, तो एक वैल्यू 14 ले लिया. दिस विल बी 13 एंड दिस विल बी 15. इन दिस केस वोट्स रिसीव्ड बाय चारू विल बी मैक्सिमम. तो चारू कैन रिसीव एट मैक्स 13 वोट्स एंड मीना कैन रिसीव मिनिमम 1 वोट. So difference between these two will be 13 minus 1 which is equal to 12 votes. क्या ये क्लियर है? ठीक है. Our purpose was to maximize the difference of votes between Charu and Meena. So we minimize the number of votes received by Meena, which can be equal to 1, cannot be 0 because 0 हम दे नहीं सकते, कंडीशन है क्वेश्चन का. Then चारू के वोट्स हमें मैक्सिमाइज करने थे, तो we also had to minimize number of votes received by X. अब ये सोच रहे होगे कि X को वोट्स हमने मिनिमम क्यों किया? क्योंकि अगर x के वोट्स तुम बढ़ा देते हो, फॉर एग्जांपल 2 के बजाय, इफ यू इंक्रीज द वोट्स ऑफ x, लेट अस से 3 कर दिए, 4 कर दिए, टोटल नंबर ऑफ वोट्स बचेंगे ए, बी और सी के लिए कम हो जाएंगे.
42 के बजाय ये वोट्स हमारे कम हो जाएंगे, ये डिक्रीज हो जाएंगे, और जब ये डिक्रीज हो जाएंगे तो चारू को मिलने वाले वोट्स भी डिक्रीज हो जाएंगे। क्या ये क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल हमने एक्स को दे दिया 3 वोट्स, ठीक है, सो अगर एक्स को 3 वोट्स दे दिया तो अब ये वोट्स बचे 41, तो नाउ 41 में से 13 वोट्स चारू को नहीं दे पाओगे, बिकॉज 41 में से अगर 13 वोट्स चारू को दे दिए तो 14 मिलने हैं बी को, 15 मिलने हैं ए को, टोटल 42 होना चाहिए, जो कि है नहीं। तो चारू को वोट्स हम 12 भी दे पाएंगे फिर इस केस में, 12 से ज्यादा वोट्स पॉसिबल ही नहीं है फॉर चारू। इज दैट क्लियर? ठीक है, सो दैट इज व्हाई वी हैव टू मिनिमाइज नंबर ऑफ वोट्स रिसीव्ड बाय एक्स एज वेल। एक्स और मीना के वोट्स को मिनिमाइज करेंगे और बचे हुए तीनों के वोट्स को मैक्सिमाइज करेंगे, बिकॉज चारू के वोट्स को मैक्सिमाइज करना है तो ए और बी के वोट्स तो बाय डिफॉल्ट मैक्सिमाइज होंगे बिकॉज दे आर फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A, B and C together can complete a work in 16 and 4/11 days, while A and B together can complete the same work in 20 days. If A starts the work and works for 12 days, and then C continues the work for X days, and then B completes the remaining work in 12 days, then find value of X. Options हैं 24, 36, 48, cannot be determined, none of these. तो क्या इस क्वेश्चन का आंसर डिटरमाइन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट इट। इज इट पॉसिबल? गिवन है क्वेश्चन में कि A, B and C together, when they work together, they can complete the work in 16 and 4/11 days. 16 into 11, 176 plus 4, 180/11 days में they are finishing the work. And while A and B together, they can complete the work in 20 days. So time given है, मैं LCM निकाल लोगे तो वहां से वर्क आ जाएगा। 180/11 और 20 का LCM क्या आएगा? फ्रैक्शंस है, LCM क्या आएगा? LCM will be LCM of numerators which is 180 only and divided by HCF of denominators which is 1. तो 180 will be LCM. So work हमने assume कर लिया 180. And if work is 180/11 days में ABC finish कर रहे हैं तो their efficiency will be 11. ठीक है, time into efficiency that is equal to work. Efficiency A, B और C की together 11 आ जाएगा, और A और B का efficiency कितना आएगा? 180/20 9 आ जाएगा। So A और B का efficiency है 9, A plus B plus C का efficiency है 11, तो यहां से C की efficiency आ जाएगी which will be equal to 11. Efficiency of C will be equal to 11. Isn't it so? Clear है? A और B की efficiency 9 है, C की efficiency 11. Then question हमसे कह रहा है कि A starts the work and works for 12 days. So for first 12 days, A is working. Then C continues the work. और C work करता है कितने दिन? X days work करता है. Then B completes the work in 12 days. अब हमें A की एफिशिएंसी और B की एफिशिएंसी इंडिविजुअली तो पता नहीं है, दोनों का सम पता है, सम पता है, इंडिविजुअल वैल्यूज नहीं पता है। बट क्वेश्चन में 12 डेज ही A वर्क कर रहा है और 12 डेज ही C वर्क कर रहा है, तो B वर्क कर रहा है, तो वी कैन डेफिनेटली, अगर हम A और B को साथ में 12 डेज वर्क कराएं या 12 डेज A अकेला वर्क करे, 12 डेज B अकेला वर्क करे, दोनों केसेस में वर्क तो सेम ही होगा इन टोटल। Isn't it so? तो यहाँ पे A और B की इंडिविजुअल एफिशिएंसीज की हमें इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है। अगर जरूरत पड़ती, फॉर एग्जांपल A वर्क करता है 12 डेज के लिए, B वर्क करता है 15 डेज के लिए, और हमें एग्जैक्ट वैल्यूज की जरूरत पड़ती है, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड आंसर होता है उस केस में। बट सिंस दोनों ने एग्जैक्ट सेम नंबर ऑफ डेज वर्क किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल वर्क हमारा कितना है? 180 है, एंड दिस विल बी इक्वल टू 12 डेज वर्क किया है A ने, 12 डेज वर्क किया है B ने, तो 12 डेज ऑफ वर्क ऑफ A प्लस B प्लस X डेज ऑफ वर्क ऑफ C, एंड A प्लस B का एफिशिएंसी 9 है, तो दिस विल बी इक्वल टू 12 into 9 प्लस X into C का एफिशिएंसी कितना है? 2 है। C का एक सेकंड C का एफिशिएंसी 11 क्यों लिख दिया है? 2 होगा, 11 minus 9, 2 एफिशिएंसी आएगा, ठीक है। सो x into 2, तो 2x plus 108 is equal to 180, so 2x will be equal to 72 and x आ जाएगा हमारा equal to 36 days, यानी कि C must have worked for 36 days. Option B will be the answer. Okay, clear है? Next question. The average of 11 numbers is 71, the average of first 5 numbers is 67, and average of last 4 numbers is 91.5, and the ratio of 6th and 7th number is 9:7. Then find the 6th number. 6th number हमारा क्या होगा? तो एक चीज तो क्लियर है, 6th और 7th नंबर जो हमारा है 9:7 आ रहा है, वैसे इंटीजर्स है नहीं है ये भी श्योर नहीं है हम, तो एक बार अच्छे से ट्राई कर लेते हैं क्वेश्चन को। एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 71. ओके, 71 इज टोटल एवरेज ऑफ 11 नंबर्स, तो सम क्या आ जाएगा? 71 into 11, सम ऑफ ऑल 11 नंबर्स।
एंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स इज 67. तो फर्स्ट 5 नंबर्स का सम क्या होगा? 67 इंटू 5. फर्स्ट 5. एवरेज ऑफ लास्ट 4 इज 91.5. तो फर्स्ट 5 को हटा लिया, लास्ट 4 का क्या है 91.5, तो सम आ जाएगा 91.5 इंटू 4 फॉर लास्ट 4. टोटल 11 थे तो बच गए हमारे 2 इन द मिडिल. और उन्हीं के लिए क्वेश्चन कह रहा है 6th और 7th नंबर का रेशियो है 9:7 का. सो इफ 6th नंबर इज 9x, 7th विल बी 7x. तो 9x प्लस 7x. अब बस सॉल्व करके तुम्हें x की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे. ठीक है, दिस सम विल बी इक्वल. तो 71 इंटू 11, दिस विल बी 710 प्लस 71, 781. 67 into 5, this will be 300 plus 35 plus 16x plus 90 into 4, 360 plus 6, 366. तो ये सम क्या आ रहा है हमारा 335 plus 366, दिस इज 701. तो 16x आ रहा है हमारा 781 minus 701 which is equal to 80 and hence x will be equal to 5. x equal to 5 आ जाएगा. ओके और हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किसकी वैल्यू पूछा है? 6 नंबर की वैल्यू पूछा है. 6 नंबर इज 9x. तो 9 into 5 आंसर विल बी 45. 45 will be the answer. Is this clear? ठीक है. अगर हम डिविजन वाले मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पड़ता है वहां से भी, बट 11 नंबर्स हैं इन टोटल. 71 एवरेज है टोटल. फॉर फर्स्ट 5 एवरेज है 67. फर्स्ट 5 एवरेज है 67 का. तो डिविजन कितना है एवरेज से? एवरेज से 67 माइनस 4 है, 4 कम है. और टोटल 5 नंबर्स के लिए एवरेज लिया है हमने, तो कितना डिविजन हुआ? 5 इंटू -4, दिस विल बी -20. सो फर्स्ट 5 नंबर्स की वजह से डिविजन कितना है एवरेज से हमारा? -20. सम हमारा -20 कम होगा. अब अगर फर्स्ट 5 नंबर्स की वजह से सम हमारा -20 कम होगा, तो बचे हुए नंबर्स की वजह से सम शुड बी +20. इज दैट सो? ठीक है, एवरेज से 20 ज्यादा होना चाहिए, यानी कि एज सच 71 इंटू बचे हुए नंबर्स कितने बचे हमारे? लास्ट 6 नंबर्स बचे. तो फॉर लास्ट 6 हमारा सम क्या हो जाएगा? दैट विल बी 71 इंटू 6 प्लस 20 होना चाहिए. ओके क्लियर है. फिर क्वेश्चन से कह रहा है एवरेज ऑफ लास्ट 4 इज 91.5. आउट ऑफ दीज नंबर्स, जो लास्ट 4 नंबर्स है हमारे, फॉर लास्ट 4 द एवरेज इज 91.5. तो कितना इंक्रीज है यहाँ पे? +20 है, प्लस 20.5 है. तो 20.5 का डेविएशन है, पॉजिटिव डेविएशन है, और 4 नंबर्स है, तो डेविएशन कितना हो जाएगा? +82. 20.5 इंटू 4. ठीक है, सारे नंबर्स का, लास्ट 6 नंबर्स का मिला के डेविएशन है हमारा +20 का, और लास्ट 4 नंबर्स का अकेले डेविएशन +82 का है. तो बचे हुए जो नंबर्स हमारे बचे, देखिए 6th एंड 7th नंबर, उनका डेविएशन कितना होगा? क्योंकि नेट डेविएशन हमारा +20 आना चाहिए. सो दैट डेविएशन विल बी +82, तो -62 होना चाहिए. और 71 एवरेज है, तो एवरेज अगर हमारा डेविएशन -62 का आ रहा है, 71 इंटू 2, 2 नंबर्स है हमारे, 71 इंटू 2 -62, दिस विल बी सम ऑफ दोज 2 नंबर्स, यानी कि दिस विल बी 142 -62 विच इज इक्वल टू 80. अब यहाँ पे क्योंकि वैल्यूज हमारी इजी थी, तो इस तरह से सॉल्व कर सकते थे, बट वैल्यूज अगर ज़्यादा टिपिकल होती, कैलकुलेशन ज़्यादा मुश्किल होता, तो फिर हमें थोड़ा सा डिविजन से हेल्प लेना पड़ता. 80 हमारा सम आ रहा है 6 और 7 का, और 9:7 रेशियो है उनका. सो 9 + 7 16 यूनिट्स की वैल्यू हो गई 80. सो 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 5. सो हमारा नंबर आ जाएगा 6 नंबर आ जाएगा 9 × 5 45. ओके क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. 3 boats A, B and C working together carry 60 people in each trip. 3 boats A, B and C when they work together, सारी की सारी बोट्स अगर साथ में वर्क करती हैं, then they carry 60 people in each trip. यानी कि एक ट्रिप में जब A, B और C तीनों जाएंगे साथ में, तो they can carry 60 people. One day A carried 50 people in few trips alone. Then it stopped and B and C started carrying the people together. It took a total of 10 trips to carry 300 people in that day by A, B and C. How many trips will it take for boat A to carry 150 people alone? This is a similar question जैसा कि लास्ट ईयर स्नैप में आया था. ठीक है, स्नैप 2023 में there was a similar question. प्रॉब्ली वैल्यू सेम था और कुछ डेटा में फर्क था. ठीक है, सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. अच्छा क्वेश्चन है. थोड़ा सा लैंग्वेज जरूर तुम्हें परेशान कर सकता है, तो लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना है, समझना है.
3 बोट्स इन टोटल ए बी एंड सी व्हेन दे वर्क टुगेदर दे कैरी 60 पीपल इन ईच ट्रिप, यानी कि एक ट्रिप में जब ए बी और सी तीनों जा रहे हैं तो दे कैन कैरी 60 पीपल। ओके, सो लेट अस से ए का कैपेसिटी है ए, बी का कैपेसिटी है बी और सी का कैपेसिटी है सी, तो ए प्लस बी प्लस सी टोटल 60 पीपल दे कैन कैरी पर ट्रिप टोटल, जब तीनों साथ में जाते हैं तब। ठीक है, बट हुआ क्या, वन डे ए कैरीड 50 पीपल इन फ्यू ट्रिप्स अलोन, यानी कि ए बेचारा अकेला गया, ए बोट अकेले गई और अकेले द बोट कैरीड 50 पीपल इन सम ऑफ द ट्रिप्स। कितनी ट्रिप्स में कैरी किया ये नहीं पता, बट ए बोट कैरीड 50 पीपल इन अ फ्यू ट्रिप्स। ओके, देन ए बोट स्टॉप कर गई, बी एंड सी स्टार्टेड कैरिंग द पीपल टुगेदर एंड इट टुक अ टोटल ऑफ 10 ट्रिप्स टू कैरी 300 पीपल इन द डे बाई ए बी एंड सी। अब यहाँ पे एक चीज है जो ध्यान देनी है, वो ध्यान देने वाली बात क्या है, फर्स्ट लाइन हमारा कह रहा है 3 बोट्स ए बी एंड सी वर्किंग टुगेदर कैरी 60 पीपल इन ईच ट्रिप, यानी कि एक ट्रिप जब हमारा काउंट हो रहा है तो ए बी और सी तीनों जा रहे हैं उसमें, इजंट इट सो, तो 60 पीपल को कैरी कर रहे हैं। क्या ये बात समझ पा रहे हो? बट हमारा एक दिन क्या हुआ, ए कैरीड 50 पीपल इन फ्यू ट्रिप्स अलोन विच इंप्लाइज दैट ए बेचारा अकेला गया। इसके बाद में बी और सी साथ में गए। ठीक है, तो बी और सी जब जाएंगे साथ में, बोथ आर ट्रेवलिंग, तो जब बी और सी साथ में जा रहे हैं तो जो एक बार गए और जाके लौट के आए तो दैट विल बी वन ट्रिप, हम उसको वन ट्रिप ही काउंट करेंगे बी और सी का दोनों का मिला के, बिकॉज क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो एक्जैक्टली इस तरह से ही बात कर रहा है। ठीक है, सो इट टुक अ टोटल ऑफ 10 ट्रिप्स टू कैरी 300 पीपल इन द डे बाई ए बी एंड सी। सो सम ट्रिप्स वर मेड बाई ए alone and some trips were made by B and C together. That is what the question is saying. Total number of trips are 10. So let us say कि trips made by A are equal to small a and trips made by B plus C are equal to 10 minus a हो जाएगा and total people they carried is 300. Okay, so A का कैपेसिटी हमने कैपिटल A माना तो कैपिटल A इंटू स्मॉल a, या फिर x मान लो, इसको स्मॉल a की वजह x मान लो, कंफ्यूजन नहीं हो, x मान लेते हैं, x and 10 minus x, तो कैपिटल A इंटू एक्स प्लस B प्लस C इंटू 10 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू 300। 300 पीपल इन 10 ट्रिप्स, 10 में से कुछ ट्रिप्स किए हैं ए ने अकेले और बाकी ट्रिप्स किए हैं बी और सी ने साथ में। ओके, एडिशनली हमें ये भी बताया कि A इंटू एक्स क्या है, दिस इज इक्वल टू 50, दिस इज 50, और B प्लस C इंटू 10 माइनस एक्स, ये वैल्यू क्या है, ये बचा हुआ नंबर होगा 250 होगा, this will be 250 because this is 50, this will be 250. okay, और क्या यहां से हम a और b प्लस c की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली हमें इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं a प्लस b प्लस c, दिस इज इक्वल टू 60, सो a x इज इक्वल टू 50, तो यहां से हमारा a का वैल्यू क्या आ जाएगा, a विल बी इक्वल टू 50 बाई x। सिमिलरली b प्लस c इंटू 10 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू 250, तो b प्लस c का वैल्यू आ जाएगा हमारा इक्वल टू 250 अपॉन 10 माइनस एक्स। क्या ये पार्ट क्लियर है भाई? ए एक्स अगर 50 हो गया तो बी प्लस सी इंटू माइनस एक्स 250 हो जाएगा और वहां से बी प्लस सी का हो जाएगा 250 अपॉन 10 माइनस एक्स। अब फर्स्ट इक्वेशन जो बना रहा था ए प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू 60, यहां पे वैल्यूज पुट कर दोगे तो एक्स में हमारी इक्वेशन बन जाएगी, दैट इक्वेशन विल बी 50 बाई एक्स प्लस 250 अपॉन 10 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू 60, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 60। ओके, तो क्या यहां से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो? देखो क्वाड्रेटिक नहीं बनानी है हमको, क्वाड्रेटिक नहीं बनानी है, बिना क्वाड्रेटिक बनाए इस क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, 10 से डिवाइड कर दो पूरे को तो हो जाएगा 5 बाई एक्स प्लस 25 बाई 10 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू 6। नाउ टू सॉल्व इट, क्योंकि x हमारा एक इंटीजर वैल्यू होगा तो x की वैल्यू पुट करके देख लो, और 10 माइनस एक्स हमारा शुड बी अ फैक्टर ऑफ 25, x शुड बी अ फैक्टर ऑफ 5, तो x या तो 1 होगा या 5 होगा, और कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। x इक्वल टू 1 करोगे तो डेफिनेटली 6 नहीं आने वाला, तो x इक्वल टू 5 विल बी द सॉल्यूशन। चेक कर लो, x इक्वल टू 5 पे दिस विल बी 1 एंड दिस विल बी 25 बाई 5, दिस विल बी 5, तो 1 प्लस 5 6 आ रहा है, यानी कि x विल बी इक्वल टू 5, which implies that 5 trips are made by A and 5 trips are made by B plus C. And X has carried 50 people in 5 trips. A has carried 50 people in 5 trips. 50 in 5 trips. तो एक ट्रिप में कितना कैरी किया होगा? 50 by 5 यानी कि 10 person per trip. So if A is carrying, boat A is carrying 10 persons per trip, तो कितनी ट्रिप्स लगानी पड़ेंगी? 150 पीपल को कैरी करना है, एक बेचारे को अकेले, तो 150 by 10 आंसर विल बी 15। आंसर विल बी 15। इज दिस क्लियर? ठीक है, ये थोड़ा लंबा तरीका होगा इस क्वेश्चन सॉल्व करने का, आप शॉर्ट में समझते हैं इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना चाहिए था।
क्या ये समझ में आया? अभी हमने थोड़े लंबे तरीके से पहले कन्वेंशनली देख लिया क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया है। अब इसके बाद में शॉर्ट में समझते हैं इस क्वेश्चन को एग्जाम में हमें एक्चुअली कैसे सॉल्व करना चाहिए था। ओके, देखो हमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10 ट्रिप्स में इन टोटल 300 पीपल वर कैरीड बाई ए, बी एंड सी। आउट ऑफ दीज 10 ट्रिप्स सम ट्रिप्स वर मेड बाई ए, सम वर मेड बाई बी एंड सी। तो ऑन एन एवरेज कितना जा रहा है पर ट्रिप? 300 बाई 10, 30 पर ट्रिप। और ए प्लस बी प्लस सी दे कैन कैरी 60 पीपल इन अ ट्रिप, अगर सब साथ में जाते तो। Isn't it so? और 60 और 30 में क्या है? 30 is just half of that. 30 is just half of that. Isn't it so? और अगर 30 एग्जैक्टली हाफ आ रहा है तो यहां पे क्वेश्चन हमसे एग्जैक्टली ये बात कह रहा है कि एग्जैक्टली ए और बी प्लस सी की ट्रिप्स सेम होंगी, तभी ऐसा पॉसिबल है। क्योंकि सम हमारा आ रहा है, जब दोनों साथ में ट्रिप करते हैं, तीनों साथ में ट्रिप करते हैं तो 60 पीपल को लेके जाते हैं। 30 पर्सन पर ट्रिप आ रहा है वैल्यू हमारा, विच इज एग्जैक्टली द एवरेज ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। बिकॉज बी प्लस सी को एक काउंट करोगे, एक काउंट करोगे यहाँ पे, क्योंकि दोनों साथ में जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे समझो कि ए हमारा अगर एक्स पीपल लेके जा रहे हैं, बी प्लस सी वाई लेके जा रहे हैं, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60। और यहां पे कुछ केसेस में एक्स जाएंगे, कुछ में वाई जाएंगे, एवरेज आ रहा है 30, यानी कि एक्स और वाई नंबर ऑफ ट्रिप्स हमारी सेम होगी। Isn't it so? क्लियर है? नंबर ऑफ ट्रिप्स सेम होगी, यानी कि 5 ट्रिप्स विल बी बाई ए एंड 5 बाई बी प्लस सी। अब चेक भी कर सकते हो कि अगर ऐसा आ रहा है तो 5 इंटू 30, ठीक है, 5 ट्रिप्स हमारी ए ने बनाई होंगी, 5 बनाई होंगी बी प्लस सी ने। क्या है? क्लियर है? और 5 में 50 को लेके गया है ये, तो पर ट्रिप लेके गया है 10 पर ट्रिप, और 250 को लेके गया बी प्लस सी, तो 50 पर ट्रिप, 10 प्लस 50 दिस इज 60। तो मैच कर रहा है बिल्कुल। क्या ये समझ पा रहे हो? डायरेक्टली ऐसे सॉल्व हो जाएगा और इसके बाद तो क्वेश्चन क्लियर है। पर इससे भी इजी तरीका हो सकता था कि क्वेश्चन में कह रहा है कि ए हैज कैरीड 50 पीपल इन फ्यू ट्रिप्स अलोन, तो 50 मस्ट बी मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ पर्संस दैट ए कैन कैरी इन वन ट्रिप। यानी कि अगर हम ए मान रहे हैं नंबर ऑफ पीपल दैट बोट ए कैन कैरी इन वन ट्रिप, तो मल्टीपल ऑफ ए होगा 50। तो 50 का फैक्टर होना चाहिए, और ए क्योंकि इंटीजर होगा, नंबर ऑफ पर्सन तो इंटीजर में ही जाएंगे, फ्रैक्शन में थोड़ी जाएंगे। तो या तो ये 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 25 हो सकता है, या 50। यही वैल्यूज पॉसिबल है। अब अगर 1 होता ये वैल्यू, 2 होता, 5 होता, तब तो 10 ट्रिप्स से ज्यादा ट्रिप्स तो अकेले ए को ही लग जाते। तो यानी कि 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता। तो 10, 25 एंड 50 कैन बी द पॉसिबल वैल्यूज। ओके, और फिर इसमें से भी एलिमिनेट हो जाएगा तुम्हारा। अगर 10 है वैल्यू, 10 पर्सन पर ट्रिप लेके जा रहा है, तो 5 ट्रिप्स लगेंगी। ट्रिप्स मेड बाई ए विल बी 5, बिकॉज टोटल 50 को लेके जा रहा है। 25 तो 2 ट्रिप्स लगेंगी, 50 तो उस केस में 1 ट्रिप लगेगा। ओके, और बची हुई 9 ट्रिप्स, अब पहले वाले केस में अगर 5 ट्रिप्स लग रहा है ए का, तो बची हुई ट्रिप्स कितनी बची? ट्रिप्स मेड बाई बी प्लस सी 5, बिकॉज टोटल 10 है, या 8 या 9। ठीक है, अब चेक कर लो, क्योंकि तुम्हारे बचे हुए पर्सन जो कैरी कर रहा है बी प्लस सी दैट इज 250। तो 250 बाई 5 फर्स्ट केस में आ रहा है, नंबर ऑफ पर्सन कैरीड बाई बी प्लस सी 50। सेकंड में आएगा, ये फ्रैक्शन में आएगा, फ्रैक्शन में वैल्यू आ रहा है तो पॉसिबल नहीं है। थर्ड में फ्रैक्शन में आ रहा है, पॉसिबल नहीं है। सो ना तो सेकंड पॉसिबल है, थर्ड पॉसिबल है, ओनली पॉसिबल वैल्यूज दिस वन। सो आंसर विल 15, ऑप्शन ए। एक आंसर में हमसे क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है कि कितने को पर्सन को लेके जा रहा है एक ट्रिप में ए, बट 150 पर्सन को लेके जाने में कितने ट्रिप्स लगेंगे? 15 विल बी देयर, 150 बाय 10, 15 विल बी द आंसर। क्या ये पार्ट क्लियर है? बिकॉज क्वेश्चन में इक्वेशन बनाने लग जाओगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्वेश्चन अननेसेसरली। स्ट्रेट अवे ऐसे सॉल्व करो। क्या ये क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The ratio of present ages of A and B is 3:4. X years ago, the ratio of ages was 5:7, and sum of ages of A and B after X years will be 48. तो find the present age of B. तो present age का ratio given है A और B का। तो for A and B, the ratio of present age का ratio that is 3:4. And after X, before X years ago, the ratio was 5:7. So एज के किसी भी क्वेश्चन में क्या ऐसा चीज है जो कि कांस्टेंट रहता है हमेशा? इफ देयर आर 2 पर्संस दे विल बी एजिंग एट द सेम लेंथ। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि एक साल में एक बंदा 2 साल बड़ा हो जाएगा और एक
3 साल बड़ा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो डेफिनेटली द डिफरेंस ऑफ द एजेस विल ऑलवेज बी इक्वल, डिफरेंस विल ऑलवेज बी इक्वल। तो डिफरेंस यहाँ पे प्रेजेंट एजेस का और x years ago का डिफरेंस शुड बी सेम, बट डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है 1 यूनिट का, एंड x years ago द डिफरेंस वाज 2 यूनिट्स। तो डिफरेंस को इक्वल करोगे, कैसे इक्वल करोगे? तो या तो 2 years जहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, 2 यूनिट्स डिफरेंस आ रहा है, इसको हाफ कर दो, बट फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। तो बेटर है कि फर्स्ट वाले केस में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। देखिए एट प्रेजेंट द रेशियो विल कम आउट टू बी 6:8। प्रेजेंट का रेशियो आ जाएगा 6:8 और x years ago का रेशियो आ जाएगा 5:7। ओके, ये पुराना है, x years ago का है और प्रेजेंट का। तो यानी कि इंक्रीज कितना है x years में? 1 यूनिट का इंक्रीज आया है, isn't it so? 1 यूनिट का इंक्रीज आया है x years ago से प्रेजेंट में। अब क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर x years, तो अगर x years में 1 यूनिट का इंक्रीज आया है तो अब तुम्हारा x years और आगे लेके जाओगे, कहां से? प्रेजेंट से आगे लेके जाओगे, तो प्रेजेंट में 1 यूनिट और ऐड कर दो, सो यू विल गेट द वैल्यूज, रेशियो की वैल्यूज फॉर द फ्यूचर। तो 6 + 1 7, 8 + 1 9, तो 7:9 का रेशियो हो जाएगा बिटवीन देयर एजेस आफ्टर x years। ठीक है, दिस इज आफ्टर x years। टोटल आ जाएगा 7 + 9 16 यूनिट्स, और वही वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज 48 ईयर्स। सम ऑफ एजेस इज 48, 16 यूनिट्स इक्वल टू 48, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। क्वेश्चन ने पूछा है प्रेजेंट एज ऑफ बी क्या होगा, प्रेजेंट एज ऑफ बी। तो बी का प्रेजेंट एज कितना है? दैट इज 8 यूनिट्स। 8 × 3 24 ईयर्स विल बी द आंसर, 24 ईयर्स, ऑप्शन बी। क्या ये समझ में आता है? ठीक है, क्लियर है भाई। हमें प्रेजेंट एजेस का रेशियो गिवन था, x years ago के लिए बात किया था, रेशियो ऑफ एजेस गिवन था x years ago का, और दोनों ही केसेस में डिफरेंस विल बी सेम। तो डिफरेंस को हमने इक्वेट किया, सेम किया, अकॉर्डिंगली फिर सॉल्व किया, और डिफरेंस को जैसे इक्वेट किया तो हमें आइडेंटिफाई कर पाए कि x years ago द डिफरेंस वाज 1 यूनिट का, इन टर्म्स ऑफ रेशियो 1 यूनिट का डिफरेंस था। ठीक है, 1 यूनिट का डिफरेंस था, तो यानी कि x years इक्वल टू 1 यूनिट। और फिर हमें प्रेजेंट से x years आगे जाना है, तो हमने प्रेजेंट एज में 1 यूनिट ऐड कर दिया, तो 6 से 7 में पहुंच गया, 8 से 9 में पहुंच गया, तो 7:9 रेशियो आ जाएगा आफ्टर x years। और टोटल सम आ रहा है 48, तो 16 यूनिट्स विल इक्वल टू 48, 1 यूनिट विल इक्वल टू 3, और प्रेजेंट एज ऑफ बी इज 8 यूनिट्स, तो 8 × 3 24 ईयर्स विल बी द आंसर फॉर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A number x when increased by 20% yields the same value as the given by number y when decreased by 50%. If the difference between y and x is 140, what is the sum of x and y? x और y का सम क्या होगा? ओके, तो x is increased by 20%। ठीक है, 20% से इंक्रीज किया x को, तो जैसे x वैल्यू इनिशियली था, 20% से इंक्रीज किया तुमने x + 0.2x, अब ये वैल्यू हो गया हमारा, और सेम वैल्यू as that given by y when decreased by 50%, तो y को 50% डिक्रीज किया है, तो y -0.5y, and both these values are equal, so 1.2x this is equal to 0.5y, so x by y आ जाएगा हमारा 5/12। 5/12 क्वेश्चन कह रहा है y और x का डिफरेंस जो है दैट इज 140, और डिफरेंस कितना आ रहा है? 7 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, 7 यूनिट इज इक्वल टू 140, सो 1 यूनिट इज इक्वल टू 20। और क्वेश्चन ने पूछा सम ऑफ x + y क्या होगा, तो x + y कितना हो जाएगा? 5 + 12 17 यूनिट्स हो जाएगा, तो 17 × 20 आंसर विल बी 340। ओके, 340 विल बी द आंसर। अब ये डेसिमल लिखने के बजाय तुम चाहे तो फ्रैक्शन में लिख सकते थे कि अगर 20% का इंक्रीज हुआ है, 20% यानी कि 1/5 का इंक्रीज हुआ है, सो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6/5 हो जाएगा, 6/5x। और y में डिक्रीज हुआ है 50% का, यानी कि 1/2 का डिक्रीज हुआ है, 2 में 1 का डिक्रीज हुआ है, बचेगा कितना? 1 ही बचेगा, तो 1/2, तो y/2 दीज आर इक्वल, सो x by y हो जाएगा हमारा 1/2 × 5/6 विच इज 5/12। बाकी कहानी तो सेम ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सम ऑफ INR 27,800 रुपीज इज इन्वेस्टेड फॉर 2 years इन 2 डिफरेंट स्कीम्स। तो इन टोटल अमाउंट जो इन्वेस्ट किया है दैट इज रुपीज 27,800। कुछ पार्ट इन्वेस्ट किया होगा स्कीम 1 में, कुछ पार्ट इन्वेस्ट किया होगा स्कीम 2 में, एंड बोथ स्कीम्स आर ऑन सिंपल इंटरेस्ट, दोनों सिंपल इंटरेस्ट पे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर 14% एंड 11% इन द फर्स्ट स्कीम एंड सेकेंड स्कीम। टोटल इंटरेस्ट आफ्टर 2 years इज रुपीज 7016,
अब क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है तो जो जितना इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में मिला होगा उतना ही सेकंड ईयर में मिला होगा, तो 2 ईयर से 1 ईयर का इंटरेस्ट निकाल लो, तो पर ईयर इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर इन टोटल दैट विल बी 7016/2, तो 3508 रुपीज पर ईयर इंटरेस्ट आ गया। ओके, फर्स्ट स्कीम में इन्वेस्ट किया 14%, सेकंड में क्या 11%, और क्वेश्चन पूछा व्हाट सम वाज इन्वेस्टेड इन द सेकंड स्कीम। ओके, तो मान लेते हैं सेकंड स्कीम में x रुपीज इन्वेस्ट किया है, और अगर सेकंड में x रुपीज इन्वेस्ट किया है तो फर्स्ट में क्या होगा 27,800 माइनस x, स्कीम 1, स्कीम 2, अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम 1 इज 27,800 माइनस x, एंड इन द सेकंड स्कीम इज x। फर्स्ट स्कीम में इंटरेस्ट मिला है 14%, तो 14/100 ऑफ दिस वैल्यू विल बी इंटरेस्ट, और सेकंड में मिला है 11/100, और टोटल है 3508। ओके, ठीक है, तो 14 इंटू 27,800/100, तो दिस विल बी 14 इंटू 278 माइनस 14/100x प्लस 11/100x, एंड दैट इज 3508। सो ये वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 11 माइनस 14, एक से निगेटिव आ रहा है तो हाँ, तो दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 3508। ठीक है, सो इन दोनों वैल्यूज को राइट हैंड साइड में लेके चले जाओ, तो 14 इंटू 278 कितना हो जाएगा, 14 इंटू 278, क्या ये 7 का मल्टीपल है, नहीं है, तो 14 इंटू 8, 2 आ गया, 11 बचा, 14 7 98 प्लस 11 109 10 28 प्लस 10 3892 माइनस 3508, दैट इज इक्वल टू 3/100 टाइम्स x। सो ये वैल्यू हमारा आ गया है 3892 माइनस 3508, दैट इज 384, दिस इज इक्वल टू 384, सो 128, and hence x is equal to 12,800. तो दिस इज द सॉल्यूशन, जबकि तो कन्वेंशनली तुम्हें सॉल्व करना है इक्वेशन बना के, बट देखा होगा कि ऐसे क्वेश्चन में कैलकुलेशन तुम्हारा अननेसेसरली मुश्किल हो जाता है, जिसकी जरूरत नहीं है, जितना कैलकुलेशन को मुश्किल करने का जरूरत नहीं है, ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। और हमने x उस वैल्यू को एज्यूम किया जो आंसर में निकालना है, क्योंकि कई बार ऑप्शन में दूसरा वैल्यू भी गिवन होगा और तुमने x दूसरी को एज्यूम कर लिया, तो कई बार गलती ऐसा हो सकता है कि लास्ट में तुमने फर्स्ट से मार्क कर दिया 15,000 फॉर एग्जाम्पल इस केस में, जो कि वैल्यू आएगा स्कीम नंबर 1 में। ओके, बट बेटर अप्रोच सॉल्व करने का क्या होगा, देखो ऐसा समझो, देयर आर 2 स्कीम्स, स्कीम 1 एंड स्कीम 2, एंड वी आर गेटिंग सिंपल इंटरेस्ट 14% इन फर्स्ट स्कीम एंड 11% इन द सेकंड स्कीम। तो फर्स्ट स्कीम में 11% तो मिल रहा है, एडिशनली 3% एक्स्ट्रा मिल रहा है, और सेकंड स्कीम में वैसे ही 11% मिल रहा है, तो 11% तो पूरे अमाउंट पे कैलकुलेट कर लो, 11% तो पूरे अमाउंट पे कैलकुलेट कर लो, और जो बच गया 33% ऑफ S1 वो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट होगा। ठीक है, सो 11% ऑफ टोटल प्लस 3% ऑफ स्कीम 1 का अमाउंट। ठीक है, स्कीम 1 का अमाउंट जो कि मान लेते हैं लेट अस से स्कीम 1 का अमाउंट S1, एंड दिस टोटल इज इक्वल टू 3508, एक ईयर का इंटरेस्ट 3508। सो 11 इंटू 278 कितना होगा 2780 प्लस 278, so this will be 3058, so 3% यानी 3/100 of S1, this is equal to 3508 minus 3058, which is equal to 450. So S1 value 15,000, so S2 will be 27,800 minus 15,000, option A will be the answer. और यहाँ पे लिखा जो है वो समझाने के लिए लिखा है, अदरवाइज तुम इतना थोड़ी लिखोगे, एग्जाम में सीधे देखोगे 3% का डिफरेंस आ रहा है, 11% ऑफ 27800, 1% है 278, 278 इंटू 11, ठीक है 2780 प्लस 278, तो वैल्यू आ जाएगा 3058, और फिर इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 3508 में 1 ईयर के इंटरेस्ट में से, तो वैल्यू मिल जाएगा 450, एंड दैट 450 इज 3% ऑफ द स्कीम 1 का अमाउंट, यानी कि 15,000 विल बी स्कीम 1 का अमाउंट और स्कीम 2 का अमाउंट, डिफरेंस होगा इन दोनों का। ओके, ठीक है, नेक्स्ट वन, number S is obtained by squaring sum of digits of a 2-digit number D. If difference between S and D is 27, then 2-digit number D can be which of the following values? Number S is obtained by squaring sum of digits of a 2-digit number D. Okay, तो अगर 2-digit number D हमारा है, let us say AB, यानी कि 10A plus B है एक्चुअल वैल्यू। ओके, तो S क्या होगा, S is by squaring the sum of digits of the 2-digit number, यानी कि A plus B whole square. This is S, and the difference between these two, डिफरेंस की बात की है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ये हमें नहीं पता, डिफरेंस इज इक्वल 27। तो बेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज बाय यूजिंग ऑप्शंस, ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शंस से सॉल्व कर लो।
ठीक है, 24 हमारा फर्स्ट वैल्यू है, तो 24 के लिए s का वैल्यू क्या आएगा, s विल बी इक्वल टू 4 प्लस 2 का स्क्वायर 36, डिफरेंस इज दैट ऑफ 12, तो a विल नॉट बी द आंसर। 34 के लिए 4 प्लस 3 7 का स्क्वायर 49, डिफरेंस इज 15, कैन नॉट बी द आंसर। 45 के लिए 9 का स्क्वायर 81, डिफरेंस इज 36, कैन नॉट बी द आंसर, डेफिनेटली डी विल बी द आंसर। और डी में वैल्यू क्या आ रहा है, 81 आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 27 का, तो डी विल बी द आंसर। क्या ही क्लियर है? ठीक है, डायरेक्टली तुम ऑप्शंस को यूज करोगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ओके, अदरवाइज क्वेश्चन विल बी साइडली एंड देयर, क्योंकि दो केसेस बनेंगे यहाँ पे, हमें एक्जैक्टली ये भी नहीं पता कौन सी वैल्यू लार्जर होगा। पहले मान के चलते हैं क्योंकि एस हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, तो अगर ए और बी की वैल्यूज लार्ज होगा तो एस शुड बी ग्रेटर, तो एस माइनस डी इज इक्वल 27। अगर सॉल्व करना ही पड़ा तो कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। ओके, बट अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में स्किप करना पड़ेगा, लास्ट में करोगे, क्योंकि यहाँ पे दो केसेस बन रहे हैं तो चीजें टिपिकल हो सकती है। हो सकता है पहला केस जो तुम लोग वहां पे कोई सॉल्यूशन निकले ही नहीं, तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा, तो लास्ट में करना है एग्जाम में बिल्कुल। ठीक है, एंड मैट में तुम ऑब्वियसली कर रहे होगे तो फिर तुम्हें स्किप करना पड़ेगा, या फिर एक कैलकुलेटर गेस ले लोगे अपने एंड पे, और ऑप्शंस तो गिवन नहीं है तो ऑप्शंस में तो डायरेक्टली ऑप्शंस यूज करोगे और क्यों करोगे और कुछ भी। ओके, बट कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऑप्शन तुम्हारा मैच नहीं कर रहा हो, कहीं पे अटक रहे हो, लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। तो एनीवे एस माइनस डी इक्वल 27 आ गया, एस हमारा ए प्लस बी होल स्क्वायर और डी है 10a प्लस बी, एंड दिस इक्वल 27। ओके, क्लियर है? तो अब कैसे करोगे इसको? अब देखो कुछ चीजें हैं जो हमें पता है जो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। क्या पता है हमको? हमें ये पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर दिस इज अ पॉजिटिव वैल्यू, और 10a प्लस बी ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू है। सबट्रैक्ट करो 10a प्लस बी ए प्लस बी होल स्क्वायर में से, और वैल्यू आ रहा है तुम्हारा 27, तो a प्लस बी होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 27। ये तो पक्की बात है ना, इतना तो होना ही होना है। एडिशनली एक 2 डिजिट नंबर है डी हमारा, तो 10a प्लस बी विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10, यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 37, यही पक्का है। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 37, ठीक है। और क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो 37 से बड़ा होना है, तो सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा इसका? 36 भी नहीं हो सकता, सबसे छोटा वैल्यू मिलेगा हमें जब a प्लस बी इज इक्वल टू 7, देन दिस विल बी 49, एंड इफ दिस इज 49 और डिफरेंस आ रहा है 49 माइनस 10a प्लस बी दैट इज 27, तो 22 होना चाहिए। बट क्या 22 पे तुम्हें a प्लस बी का होल स्क्वायर 49 मिलेगा? क्या a प्लस बी 7 होगा? नहीं होगा 22 के केस में, तो ये सॉल्यूशन तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट केस व्हेन a प्लस बी इज इक्वल टू 8, 64 हो जाएगा, और 64 माइनस 27 दैट इज इक्वल टू 37। अगेन 3 प्लस 7 दिस इज नॉट इक्वल टू 8, 3 प्लस 7 इज नॉट इक्वल टू 8, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं पॉसिबल है। नेक्स्ट केस a प्लस बी इज इक्वल टू 9, 81 हो जाएगा, तो दिस विल बी 54। नाउ 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9, तो डेफिनेटली यहाँ पे सॉल्यूशन हमें मिल रहा है, तो ये काम का सॉल्यूशन है हमारा 54 विल बी द सॉल्यूशन। बट क्या ये अकेला सॉल्यूशन होगा? एक बार आगे और प्रोसीड करते हैं, तो इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 10, तो a प्लस बी होल स्क्वायर आ जाएगा 100, सो 10a प्लस बी शुड बी 73, और 73 में भी 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10, 2 डिजिट नंबर भी है, सब कंडीशंस मीट कर रही हैं, तो 73 विल बी सेकंड सॉल्यूशन, इजंट इट सो? क्या क्लियर है? इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 11, क्योंकि 11 भी होना पॉसिबल हो सकता है, सो 121 आ जाएगा हमारा a प्लस बी स्क्वायर, सो 10a प्लस बी शुड बी इक्वल टू 94, और 94 के केस में सम 13 आ रहा है, सो यहाँ पे तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अब इससे बड़ी वैल्यू कर लोगे तो तुम्हारा 3 डिजिट नंबर बचेगा इसके बाद, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा 144 हो जाएगा, तो 10a प्लस बी विल ऑल्सो बी 3 डिजिट नंबर, तो पॉसिबल नहीं है, तो यही हमारे पॉसिबल केसेस होंगे। तो यहाँ से 2 सॉल्यूशंस मिले हमें, 54 एंड 73 आर द 2 सॉल्यूशंस, 54 एंड 73 आर द सॉल्यूशंस। ओके, तो D कैन बी 54 और 73। ओके, क्लियर है? अब तुम्हारा सेकंड केस हो सकता है व्हेन D माइनस S इक्वल टू 27, तो D इज 10a प्लस बी, तो 10a प्लस बी माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज 27, या और बेटर तरीके से इसको लिख सकते हैं 10a प्लस बी विल बी इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 27। ओके, ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 27। अब बहुत छोटा ही वैल्यू होगा a प्लस बी का, तो कितना होगा? तभी 1 तो होगा एटलीस्ट, ठीक है। सो इफ दिस इज इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 27 शुड बी 28,
दिस शुड बी 28, बट क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, बिकॉज ए प्लस बी होल स्क्वायर फिर 1 नहीं होगा ना, ए प्लस बी 1 नहीं होगा अगर 28 आ रहा है 10 प्लस बी। ठीक है, सेकंड केस, इफ दिस इज 4 2 का स्क्वायर तो 31 होगा, क्या भी पॉसिबल है? 3 + 1 = 4, 16 आना चाहिए, तो ये भी केस नहीं बन रहा है। तो ऐसे तुम देखोगे यहां पे तुम्हें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा इस केस में, नो सॉल्यूशन इन दिस केस। ओके, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x³ = x² + 6x, देन फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। x³ = x² + 6x, तो फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। ओके, ठीक है, सो x³ = x² + 6x, सारी वैल्यूज को एक साथ लेके आ जाओ। तो x³ - x² - 6x, दिस इज इक्वल टू 0, x कॉमन आ जाएगा, तो x × x² - x - 6, दिस इज इक्वल टू 0। अब x² - x - 6 को कैसे ब्रेक कर सकते हो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये ब्रेक हो जाएगा हमारा x² - 3x + 2x - 6, सो दिस पार्ट विल बी x × x - 3 + 2 × x - 3, यानी x + 2 × x - 3 और into x, this is equal to 0। ओके, तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा? x कैन बी इक्वल टू 0 या x कैन बी इक्वल टू -2 और x कैन बी इक्वल टू 3। तो सम ऑफ वैल्यूज क्या आ जाएगा हमारा? 0 + -2 + 3, so total sum will be equal to 1। sum will be equal to 1, option A will be the answer। is this clear? ठीक है, ओके। अब देखो, कभी भी ऐसा इक्वेशन हमें गिवन है x³ x to the power 4 x to the power 5 हो इन जनरल, तो इफ देयर आर लेट अस से 3 रूट्स है हमारे a b and c, तो x - a into x - b into x - c, दिस विल बी द इक्वेशन इफ रूट्स आर a b and c। ठीक है, अब अगर जब मल्टीप्लाई करोगे इन सबको, तो x³ - a + b + c into x² plus ab plus bc plus ca into x minus a into b into c। So in any such case, the second term x square का जो कोफिशिएंट है, ठीक है, x³ minus this something into x square, so this coefficient, this will be sum of roots। sum of roots हमें मिल जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x square, और x³ अल्टरनेट प्लस माइनस होगा, तो x³ minus x square plus x minus 1। अगर यहीं पे x to the power 4 होता तो होता x to the power 4 minus sum of roots into x³ plus product of two roots into x square minus x plus 1। ठीक है, तो इस तरह से हमारा टर्म जाता है, 1 नहीं, लास्ट में हमारा प्रोडक्ट आ जाता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाता है, लेट अस से p इज देयर। ओके, तो प्लस माइनस अल्टरनेट प्लस माइनस होगा हमेशा। ठीक है, और सम ऑफ रूट्स आ जाएगा हमारा सेकंड केस में, विच विल ऑलवेज बी, अगर हमारा इक्वेशन है ax³ + bx² + cx + d, तो हमारा सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा? सम विल बी इक्वल टू -b/a, जैसे आता है क्वाड्रेटिक केस में, सम विल बी -b/a, और क्योंकि a हमारा इक्वल टू 1 है, दैट इज वाई -b हो जाएगा सम। तो सेम चीज अप्लाई कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। इक्वेशन हमारा क्या है? x³ - x² - 6x, तो x² कोफिशिएंट आ रहा है -1, कोफिशिएंट -1 है, तो हमारा सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा? दैट विल बी -1 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x³ विच इज इक्वल टू 1, तो आंसर आ जाएगा डायरेक्टली 1 इज आ जाएगा आंसर। क्या ये क्लियर है? ठीक है, कि सॉल्व करने की जरूरत नहीं हमें, ऐसा सॉल्व करके रूट्स निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली हम देख लेंगे कोफिशिएंट क्या है। अगर x³ है, क्यूबिक इक्वेशन है हमारी, तो x² कोफिशिएंट देख लेंगे, x to the power 4 है तो x³ का कोफिशिएंट देख लेंगे। ओके, ठीक है, -b/a विल बी द सम ऑफ रूट्स ऑलवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये थोड़ा सा सिमिलर क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन जैसे ही, देयर इज ओनली वन डिफरेंस जो कि इस क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग बनाता है कि x इज इक्वल टू 4th रूट ऑफ x³ + 6x², तो फाइंड द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। हमें चाहिए सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, और x हमारा क्या है? x इज इक्वल टू 4th रूट ऑफ x³ + 6x²। okay, so since x is 4th root of x³ + 6x², तो x must be positive। अगर हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं किसी भी नंबर का, ठीक है, लेट अस से हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं 16 का, तो दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू +4 एंड नेवर -4। तो हमेशा हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे वेदर वी आर टेकिंग स्क्वायर रूट, और 4th रूट ले रहे होंगे तब भी 16 to the power 1/4, दैट विल बी इक्वल टू +2।
ओके, सो यहाँ पे x विल बी पॉजिटिव, x की जो पॉजिटिव वैल्यूज होंगे हम उन्हीं को एक्सेप्ट करेंगे। अगेन पावर 4 कर दो बोथ साइड्स में, तो x टू द पावर 4 हो जाएगा हमारा 4th रूट ऑफ x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर टू द पावर 4। तो दिस इज पावर 1/4 टू द पावर 4, यानी पावर 1 हो जाएगा। सो x टू द पावर 4 विल बी इक्वल टू x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर। सो x टू द पावर 4 माइनस x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जब पिछले वाले क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम इस क्वेश्चन को सोचेंगे तो वी कैन सी दैट -1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। तो सम ऑफ रूट से क्या आना चाहिए हमारा, +1 आना चाहिए। ठीक है, सम ऑफ रूट्स +1 आना चाहिए, बट क्वेश्चन हमारा कह रहा है सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, और x को पॉजिटिव भी होना चाहिए। तो अगर x पॉजिटिव नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे ये भी चेक करना है कि जो वैल्यूज हमारी आ रही है क्या सारी की सारी वैल्यूज हमारी पॉजिटिव है या नहीं है, ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव और नॉट। ठीक है, सो जैसे एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लोगे तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेते ही वैल्यू बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, यानी सेम कहानी है पिछले क्वेश्चन जैसी। तो क्या रूट्स आए थे हमारे पिछले क्वेश्चन में, 0 -2 and 3। तो एक्स इक्वल टू 0 -2 and 3 विल बी द रूट्स, बट एक्स कैन नॉट बी -2। 0 तो हो सकता है, 0 चलेगा, एक्स को 0 पुट करोगे तो सोल्यूशन आ रहा है वहां पे, कोई दिक्कत नहीं, 0 चलेगा। ठीक है, बट -2 नहीं चलेगा बिकॉज नेगेटिव हो रहा है, 3 चलेगा। तो सम ऑफ रूट्स हमारा सम ऑफ real values of x will be 0 plus 3, answer will be 3, option B and not +1, because यहाँ पे एज सच हमें इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, इस इक्वेशन तक तो हम पहुंचे हैं, हमें सॉल्व करना था इस इक्वेशन को, ओरिजिनल इक्वेशन को x इज इक्वल टू 4th रूट ऑफ x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते तब कहानी अलग होती, तब तो -2 भी एक्सेप्टेबल होता, नेगेटिव होता तो क्या प्रॉब्लम है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट क्योंकि वी आर सॉल्विंग x इज इक्वल टू 4th रूट ऑफ x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, दैट इज वाई -2 नेगेटिव वैल्यू ऑफ x विल नॉट बी एक्सेप्टेबल, एंड दैट इज वाई आंसर विल बी only option B 3 and not 1। okay, क्या ये क्लियर है, क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Arun, Tarun and Varun are solving a difficult puzzle. The probabilities that they can solve the question individually are 3/8, 2/9 and 1/5 respectively. If only one of them was able to solve the problem, then what is the approximate probability that Tarun will be able to solve the problem? That Tarun solve the problem. सिर्फ एक नहीं सॉल्व किया है और हमें ये probability पता लगाना है कि तरुण ने सॉल्व किया हो। ओके, ठीक है, तो हमारे काम का फेवरेबल इवेंट क्या है, दैट तरुण सॉल्व द प्रॉब्लम। दिस इज अवर फेवरेबल इवेंट। और टोटल केसेस क्या है, एनी वन सॉल्व द प्रॉब्लम, ओनली वन हैज सॉल्व द प्रॉब्लम, तो एनी वन सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल केसेस। फेवरेबल केसेस इज तरुण सॉल्व द प्रॉब्लम एंड टोटल केसेस इज एनी वन सॉल्व। ओके, सो 3 केसेस बनेंगे। फर्स्ट केस विल बी, क्योंकि एग्जैक्टली एक नहीं सॉल्व किया है, तो अरुण, तरुण and Varun. The first case will be that Arun solved the problem, Tarun did not and Varun did not. Second case, Tarun solved the problem, neither Arun neither Varun. Third case, Varun solved the problem, neither Arun nor Tarun. Okay, तीनों केसेस की प्रोबेबिलिटीज क्या आ जाएंगी हमारी। फर्स्ट केस में क्या है, अरुण इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम, तरुण एंड वरुण आर नॉट एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो अरुण कैन सॉल्व द प्रॉब्लम विद प्रोबेबिलिटी 3/8, तो प्रोबेबिलिटी विल बी 3/8 फॉर अरुण सॉल्विंग द प्रॉब्लम। अब अरुण, तरुण, वरुण का केस क्या है, इंडिपेंडेंट है, अरुण सॉल्व कर लेगा एंड तरुण विल नॉट बी एबल टू सॉल्व एंड वरुण विल नॉट बी एबल टू सॉल्व, तो एंड की जगह क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन आएगा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। तो तरुण सॉल्विंग द प्रॉब्लम की प्रोबेबिलिटी है 2/9, तो तरुण नॉट बीइंग एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, दैट विल बी 1 - 2/9। और सिमिलरली वरुण नॉट एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1 - 1/5। 3/8 इंटू 7/9 इंटू 4/5। ओके, ठीक है। सेकेंड केस में अरुण विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, 3/8, 1 - 3/8 क्या होगा, 5/8 होगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा 8 - 3/8, तो 5/8 मल्टीप्लाइड बाई तरुण इज एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, प्रोबेबिलिटी होगी 2/9 एंड फॉर वरुण दिस विल बी 1 - 1/5 विच इज 4/5। चीजों को सिंप्लीफाई नहीं करना है, ठीक है, बिकॉज 8 × 9 को डिनोमिनेटर में रहने दो ताकि लास्ट में कैलकुलेशन हमारे लिए आसान रहे। ओके, लास्ट केस, अरुण सॉल्व नहीं करेगा तो 5/8 फॉर अरुण, तरुण भी सॉल्व नहीं करेगा, 7/9 फॉर तरुण, एंड लास्टली वरुण विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो 1/5 फॉर वरुण। ओके, नाउ डिनोमिनेटर में आएगा टोटल कहानी और न्यूमरेटर में आएगा प्रोबेबिलिटी फॉर तरुण सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ओके, तो अवर प्रोबेबिलिटी फॉर तरुण सॉल्विंग द प्रॉब्लम दैट विल बी इक्वल टू
तरुण ने सॉल्व किया सेकंड केस में, तो न्यूमरेटर वैल्यू आ जाएगा हमारा 5/8 इंटू 2/9 इंटू 4/5, 5 इंटू 2 10 इंटू 4 40, 40/8 इंटू 9 इंटू 5, 40/8 इंटू 9 इंटू 5 डिवाइडेड बाई, सारे केस में न्यूमरेटर को अलग से ऐड कर लो और डिनोमिनेटर तो हमारा यही सेम रहेगा, ठीक है। सो 7 इंटू 4 28 प्लस 3 84, 28 इंटू 3 84 प्लस 40 प्लस 35 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 9 इंटू 5, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके, दिस विल गेट कैंसिल आउट, तो प्रोबेबिलिटी हमारा बच जाएगा 40/124 159, 40/159 which is approximately 1/4 या 0.25, ऑप्शन सी विल बी द आंसर। क्या है, क्लियर है? ठीक है, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the value of x plus y plus z if 2 to the power x plus 2 to the power y plus 2 to the power z this is equal to 3200 where x, y and z are positive integers. So x, y and z हमारे positive integers हैं, 2 to the power x plus 2 to the power y plus 2 to the power z this is equal to 3200 and we have to find out the value of x plus y plus z. x plus y plus z का वैल्यू क्या होगा? अब अगर x, y और z हमारे इंटीजर्स हैं तो 2 to the power x, 2 to the power y, 2 to the power z ये भी तो सब इंटीजर ही हैं और सम इनका आ रहा है 3200. सो फर्स्ट मेथड, द बेस्ट मेथड इज कि यहाँ पे डायरेक्टली तुम वैल्यूज पुट करके देख लो, ठीक है, डायरेक्टली वैल्यूज पुट करके देख लो। हमें सम कितना बनाना है? 3200 बनाना है, अगर सम को 3200 बनाना है 2 to the power 5 is 32 बिकॉज 3200 आ रहा है, 2 to the power 10 is 1024, 2 to the power 11 is 2048. अब अगर हमें 3200 बनाना है तो अगर सारे की सारी वैल्यूज हमारी 1024 हो जाए तो क्या बन जाएगा सम हमारा? तब भी सम कितना आएगा हमारा? 3072, तो दिस विल नॉट बी इक्वल टू 3400, यानी कि हमें इससे हायर पावर चाहिए होगा क्योंकि पावर सारी की सारी इंटीजर है, यानी कि 2 to the power 11 मस्ट बी देयर, 2048 मस्ट बी देयर, तो एक वैल्यू तो 2048 आ गया। इसके बाद में कितना बचा? 1100 समथिंग बचा है, यानी कि 1024 भी चाहिए होगा बिकॉज 512 से नहीं बना पाओगे, नहीं बन पाएगा, तो एक वैल्यू आ गया 2048, अदर विल बी 1024, तो दो वैल्यूज क्लियर हो गया हमारा। दिस सम इज 3072, तो बचा कितना? 128, टोटल आ गया 3200, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। सो दिस विल बी 2 to the power 11 प्लस 2 to the power 10 प्लस 128 कितना है? 2 to the power 7 है, तो 2 to the power 11 प्लस 2 to the power 10 प्लस 2 to the power 7 दिस विल बी इक्वल टू 3200। सो आंसर आ जाएगा हमारा एक्स, वाई एंड जेड कैन बी नॉट इन एग्जैक्ट ऑर्डर, ऑर्डर तो बदल भी सकता है बट सम कांस्टेंट रहेगा, सम तो सेम रहेगा, ठीक है। तो 11 प्लस 10 प्लस 7 दिस वैल्यू 2 to the power 7, 27 जैसा लग रहा था, ठीक है। सो 11 प्लस 10 प्लस 7 सम आ जाएगा हमारा 28, आंसर विल बी 28, ऑप्शन बी, ओके। क्लियर है? अगर हमें सॉल्व करना ही होता तो सॉल्व करने में थोड़ा सा लंबा मेथड है, लंबा क्या है मतलब डायरेक्टली दिख रहा है जो चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे इतना लिखने की जरूरत सिर्फ समझाने के लिए था, अदरवाइज लिखना थोड़ी है। 3200 हमारा वैल्यू आ रहा है, 2 to the power 10 होता है 1024, 2 to the power 11 होता है 2048, तो डेफिनेटली 2 to the power 11 की हमें जरूरत पड़ेगी, 2 to the power 10 की जरूरत पड़ेगी, इन दोनों को लिखते ही तुम्हारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है उसके बाद में, क्योंकि थर्ड वैल्यू विल बी 128 विच इज 2 to the power 7, और ये हम इसलिए कर पा रहे हैं बिकॉज एक्स वाई जेड हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, अगर इंटीजर नहीं होते तब फिर प्रॉपर्ली सॉल्व ही करना पड़ता बिकॉज देयर वुड हैव बीन नो अदर वे, ओके। अब एक क्वेश्चन को एक बार फिर से लिखते हैं, राइट हैंड साइड में आ रहा है 3200 विच इज 32 इंटू 100, और 100 में से 2 की पावर कॉमन ले लेंगे, तो 32 इंटू 4 इंटू 25, दिस इज 128, दिस इज बेसिकली 128 इंटू 25 या 2 to the power 7 इंटू 25, सो डिवाइड बाई 2 to the power 7, तो 2 to the power x प्लस 2 to the power y प्लस 2 to the power z डिवाइडेड बाई 2 to the power 7 दिस इज इक्वल 25, तो बन जाएगा 2 to the power x बाई 2 to the power 7 हो जाएगा 2 to the power x minus 7 प्लस 2 to the power y minus 7 प्लस 2 to the power z minus 7 दिस इज इक्वल 25। अभी भी तुम्हें वही सेम काम करना पड़ेगा, 2 की पावर्स में ही डील करना है, 25 आ रहा है, ऑड आ रहा है, यानी कि 1 वैल्यू विल बी इक्वल टू 1, किसी एक को 1 मान लो, ठीक है। अब बच गया 24, 24 कैसे बना सकते हो 2 की पावर से? दिस कैन बी 16 प्लस 8,
सो 1 विल बी 16, 1 विल बी 8. ठीक है, 1 is to the power 0, 8 is to the power 3, 16 is to the power 4. तो x minus 7 equal to 4 आ गया. y minus 7 equal to 3 आ गया और z minus 7 equal to 0 आ गया. तो यहाँ से x आ गया equal to 11, y equal to 10 and z equal to 7. So answer will be 11 plus 10 plus 7. Is that clear? ठीक है, और x y z आपस में इंटरचेंजेबल है, आपस में उनकी वैल्यूज बदल सकती है क्योंकि कोई ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं है. 16 8 की 1 की बजाय 1 8 16 भी हो सकता था, 16 1 8 भी हो सकता था. 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते थे इन वैल्यूज को. ओके, बट सम विल बी कांस्टेंट इन ऑल द केसेस. इज दैट क्लियर? ठीक है, सो दैट बी द आंसर. So these are all the questions in this session. I believe जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया समझ में आओगे. And if you have liked the session, then make sure to hit the like button as well. And if you have not already subscribed to the YouTube channel and you are liking the content, then subscribe to the channel as well. You can also join the Telegram channel Mathological, या मुझे मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे @ADITByKT. बहुत सारे लोग मैसेज करते हो कि कैसे कॉन्टैक्ट करें, जबकि मैं बार बार हर एक सेशन में बता रहा हूँ कि कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. ठीक है, सो यू कैन फ्रीली मैसेज मी रिगार्डिंग योर क्वेरीज और कंसर्न्स. चलो इतना ही रखते हैं. बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग.